شام کے چینل پہ آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستوں کو. آج ہم پھر لے کے آئے ہیں ہم بستری کا طریقہ. ہم بستری مطلب جو سہاگ رات ہوتا ہے ایک ساتھ سوتے ہیں لڑکا لڑکی, اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. تو ان مولوی جی نے اپنا بیان پیش کیا ہے اپنے, تو دیکھتے ہیں کیا بولا ہے انہوں نے. تو دوستوں اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز لائک سبسکرائب کیجیے گا. آئیے سنتے ہیں بیان کو. جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے, کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو, یعنی وہ نیچرل نہ ہو, تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے, لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے, بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں. طارق مسعود آفیشیل. اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم, تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں, تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے, تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے, نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے, وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے, جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے, اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں, اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے, اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے, توہین کے لیے نہیں. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی جانے والی, اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی, اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو, کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان, لیکن ہمارے یہاں اردو میں گالی ہے وہ, اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے. تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں, نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم, تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ, انا شئتم, جیسے چاہو, وقدموا لانفسکم, اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو, یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس, اور آخرت کے لیے انتظام کرو, یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے, فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے. تو دنیا بھی داخل ہے, آخرت بھی داخل ہے. الحمدللہ. تو اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ خواتین تھی, مکہ میں صدیوں سے لوگ آباد تھے, ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر ہوا کرتے تھے. ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں, تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے تھے, انصار صحابہ سے بھی. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں, اللہیت تھی, بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کا جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے قوم میں, اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں.
शौक से उनके बैठा था सवाल तो को वही है ना, मुबहम छेड़ने रखा के लिए गया बैठा था, और इस शौक कुरान से ने उसके जवाब को भी किनायतन बयान किया, क्योंकि मसला ज़ाहिर हया के ख़िलाफ़ है। तो कुरान जब भी कोई ऐसी बात होती है तो इशारतन किनायतन उसका तज़किरा कर देता है ताकि मसला भी वाज़ेह हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी ज़रूरत तो क़यामत तक आने वाले इंसानों को पड़ सकती है ना। ये तो हर मियाँ बीवी का अपना एक ज़ाती मसला होता है कि हमें किस तरह से परमिशन है, किस तरह से परमिशन नहीं है। तो अल्लाह ताला ने भी इशारतन ही इस हुक्म को कुरान में बयान कर दिया। कुरान में इसलिए बयान किया कि ताकि इसमें कोई इज्तिहादी इख्तिलाफ़ की गुंजाइश ना रहे। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया, फरमाए निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी जो अज़वाज हैं, तुम्हारी जो बीवियाँ हैं, वो तुम्हारे लिए बमंज़िला खेत है। खेत का मतलब क्या होता है? पैदावार बढ़ाने का ज़रिया। तो इसमें सबसे पहला मसला तो कुरान ने ये बयान कर दिया कि ज़ौजा से हेलो दोस्तों, जो संजय मिस्त्री है शामी को वो चैनल पे सिर्फ आपका एक उसी बार रास्ते में जायज़ है जिससे हेलो औलाद दोस्तों, संजय क्योंकि रेखी शाम के औरत को चैनल पे अल्लाह ने आपका एक बार बनाया फिर से है स्वागत नस्ल है दोस्तों। बढ़ाने को आज हम फिर लेके आए हैं कोई भी ऐसा हम बिस्तरी हम का बिस्तरी तरीका का इख्तियार तरीका, हम करना बिस्तरी मतलब जो जो सुहागरात नस्ल होता है, एक बढ़ाने साथ का सोते ज़रिया हैं ना हो, लड़का, यानी वो उसका नेचुरल तरीका ना क्या हो, वो होता है? हराम है। तो इसमें अल्लाह ने ये हुक्म मौलवी दिया। जी ने तो अपना इससे बयान साफ पेश किया है हदीस से अपने, भी पता चलता है तो और देखते हैं तमाम क्या फुक़हा होगा का इज्मा भी इसमें। है इस आयत दोस्तों की अगर आपको रोशनी अच्छा में लगे तो प्लीज़ कि लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मसला थोड़ा हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन मेरा ख्याल है बताना ज़रूरी है सही कि तरीका पिछले रास्ते से औरत से हम बिस्तरी करना बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर बहुत शदीद लानत है, बहुत शदीद वईद है। ये बिल्कुल इल्लीगल है इस्लाम में कि औरत के पिछले रास्ते से उससे हम बिस्तरी की जाए। जो लोग लड़कों से बदफेली के आदी होते हैं उनको ये एक चस्का लग जाता है, तो ये हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि अल्लाह ने बता दिया कि ये तुम्हारे लिए मंजिला खेत के हैं। तो इसमें कुरान ने वो जो सवाल था ना उसकी तरफ इशारतन जवाब दे दिया और आगे फरमाया फ़ातू हर सकून, तुम अपने खेत के पास आओ, यानी पैदावार बढ़ाने का जो ज़रिया है उस जगह की तरफ आओ, अन्ना शी तुम जैसे चाहो, यानी बाकी जिस तरह से तुम चाहो ज़ौजा से हम बिस्तरी कर सकते हो, उसमें कोई ख़ास तरीक़ा मुतय्यन नहीं है। मियाँ बीवी का एक दूसरे से कोई पर्दा नहीं है। उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ये दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं। तो उसमें तरीक़ाकार कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह से करना चाहो एक दूसरे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हो। लेकिन फ़ातू हर सकूम आना मौज़े हर्स में, हर्स का मतलब उस जगह की तरफ आना है जहाँ से नस्ल बढ़ती है, किसी और रास्ते की तरफ। इससे साफ़ तौर पर जो है ना वो जो फासिक फाजिर लोगों की जो बुराई है, जो लड़कों से बदफेली के नतीजे में पैदा होती है, उसका अल्लाह ने कलाकमा कर दिया कि उसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। बाकी तरीक़ाकार क्या होगा ये तुम्हारे ऊपर, इसकी अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और चूँकि बार बार हर्स का तस्करा हो रहा है नस्ल बढ़ाने का, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपनी ज़ात के लिए फ्यूचर में इंतज़ाम करो। क़द्दिमू का मतलब आगे भेजो अपनी ज़ात के लिए सरमाया। क्या मतलब कि जब ज़ौजा से हम मिस्तरी करो तो नीयत औलाद की होनी चाहिए, ताकि वो औलाद दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा बन जाए। ये नस्ल बढ़ाने की बहुत ज़बरदस्त तरगीब है इस आयत में। और इस आयत में अल्लाह ने औरत का कि बहुत सारी ज़िम्मेदारियों में से एक बड़ी ज़िम्मेदारी का भी बयान बता दिया कि औरत को अल्लाह ने बनाया है, जो मर्द और औरत का जो फ़र्क रखा है ना, इस फ़र्क की बड़ी वजह यही है कि मर्द के स्पर्म को अल्लाह ने बीज के तौर पे पैदा किया है और औरत को अल्लाह ने ज़मीन के तौर पे। तो बीज और ज़मीन के मिलाप का बुनियादी मकसद ही नस्ल बढ़ाना, पैदावार बढ़ाना होता है, ना ये कि नस्ल रोकना। आज फैमिली प्लानिंग वालों ने इस आयत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और जो पूरी दुनिया में एक बेहुदा किस्म की तहरीक चल रही है, ये आयत बिल्कुल उसकी नफ़ी कर रही है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, और अच्छा अल्लाह ने इसका भी जवाब दे दिया कि जो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं ना नस्ल बढ़ने से तुम्हारा नुकसान होगा, ख़र्चे बढ़ जाएंगे, तो अल्लाह फरमाते हैं क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा, संवर जाएगा, क्योंकि औलाद पे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती जितना उसका आउटपुट होता है। इनपुट कम है, आउटपुट ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट कम है, उसके जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अल्लाह ने फरमाया अपने नफ्स के लिए, फ्यूचर के लिए इंतज़ाम करो, बुढ़ापे के लिए इंतज़ाम करो। तुम्हारे बेटे होंगे, बेटियाँ होंगी, पोते होंगे, नवासे होंगे, बहुएँ होंगी। ये दुनिया का मुस्तक़बिल और आखिरत का मुस्तक़बिल क्या है, जो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब निकाह का इरादा तर्क किया तो आपकी जो हमशीरा थी हज़रत हफ्सा, उन्होंने फरमाया कि निकाह करो, तुम्हारे औलाद होगी, दुनिया से जाओगे तो तुम्हारे लिए दुआएँ मांगेगी, तो ये आखिरत के लिए ज़ख़ीरा है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि आखिरत के लिए ज़ख़ीरा करो। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वालमू अन्नकुम मुलाक़ूहु, और जान लो कि तुमने एक दिन अल्लाह से मुलाकात करनी है। तो जितने हकाम अल्लाह ने तुम्हें इस आयत में दिए हैं उन तमाम हकाम को तुमने फ़ॉलो करना है। वबश्शिरिल मुमिनीन, और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो।
दोस्तों तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जो मौलवी जी ने अपना बयान पेश किया है कि हम बिस्तर कैसे होना चाहिए। आपको पता ही होगा कैसे होना चाहिए और आप कमेंट में बता सकते हैं कि सही में वो तरीका जो इन्होंने बताया वही सच्चे मायने में सही होता है। और दूसरी बात इन्होंने बोली कि मुसलमानों में या कुरान में या कहीं लिखा है कि अल्लाह ने कहा है कि हाँ बच्चे जितने मर्जी पैदा करो, ये तो एक खेती है। तो मैं इस पर भी एक अपना तर्क देना चाहूँगा। भले ही आजकल सरकार बोलती है 2 ही बच्चे या 3 ही बच्चे होने चाहिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कानून लाया है, तो ये भी सही है। अब बोलते हैं बुढ़ापे के लिए बच्चे सहारा होते हैं, तो बच्चों के लिए भी तो कुछ करना हमारा फ़र्ज़ है। 10 बच्चे पैदा कर लेंगे, एक बच्चा तो संभाला नहीं जाता है आजकल की दुनिया में, तो उतने ही पैदा करो जितनों को हम संभाल पाएँ। और हम आज उनको संभालेंगे तभी वो हमको कल संभालेंगे, यानी कि हम करेंगे तभी पाएंगे। ये नहीं कि पैदा करके छोड़ दिया तो 4 बच्चे हमको कल ही काट देंगे, कहेंगे तूने पैदा किया, अपने मस्ती की एंजॉय की, हमको पैदा करके फेंक दिया, आज हम हैं, ये सब तेरी बदौलत है, वो गरीब है, कुछ है, भीख मांग रहे हैं। तो भले ही उस ज़माने में अल्लाह ने क्या सोच के बोला होगा चाहे नहीं, लेकिन अभी मेरे हिसाब से या किसी के हिसाब से 2 बच्चा अभी पैदा हुआ है, देखो संभालो। अगर संभालने वाला रहेगा तो आपको पता है एक ही माँ बाप को संभाल सकता है, क्योंकि एक पौधा भी छाया दे सकता है 10 इंसान को। यहाँ 10 तो नहीं है माँ बाप है, एक ही पौधा अच्छा हो तो छाया दे सकता है, नहीं तो 10 पौधे अच्छे लगा दो। और जिस पर पेड़ पौधे पत्ते ही अच्छे ना किए, आपको देखते ही ना, तो वो इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाती है। इसलिए 2-3 इन्वेस्टमेंट 2-3 बच्चे पैदा कीजिए, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छे से अच्छे चीज़ दीजिए, जितना हो सके अच्छा कीजिए उसके लिए, जो हो सकता है उनके लिए, तो आगे जाके 3 में से 1 तो साथ दे गए। दोस्तों यहाँ मुझे गलत लगा ये बात, और आपको मेरा ये बात अगर सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वैसे कुरान में उनके हिसाब से भी सही लिखा गया होगा, बट हमारे हिसाब से ये नहीं है। बच्चा हिंदुओं में भी ज़्यादा होता था, ऐसा नहीं कि बहुत है। मेरे नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं, हिंदू में भी ज़्यादा था और तुम्हारे भी 5-5 7-7 है, और वैसे उनके भी मेरे 5 साल तुम 4 भाई, तो तुम्हारे खानदान में किसी का था ना 6-7। तो उसी तरह हर परिवार में मुसलमानों में भी 4 2-3 होते थे, किसी के 10-12 होते थे, हर जगह बहुत होते थे। तो यही है, आजकल के ज़माने से इतना सही नहीं है, आपको भी पता है। तो ये मेरे हिसाब से पहले ज़माने के लोग करते हैं, आजकल समझदार हिंदू मुस्लिम जो भी हो वो ये कहते हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाइए, और कमेंट में आप भी अपना कर बता दें।